Thank you for joining us on Republic TV. Ladies and gentlemen, on the live report this afternoon, a story that we've been investigating for the last 2 days here on Republic. It's a story of how criminal negligence has ensured 13 people died. State government says only 4 have died. That's our top headline on the show. The big cover-up underway in Indore. People say they warned the politicians 2 months ago and they begged them to give them clean water, but they didn't because they were waiting for a tender to be passed that never happened. The result, 13 people have died. Russia shows drone proof, claims this was the drone that targeted Putin's residence. China fires more drills towards Taiwan. Xi Jinping says it's time that Taiwan is reunited with China. Ladies and gentlemen, Indore in Madhya Pradesh is called India's cleanest city. It's an irony because in the cleanest city that it's been titled, we've seen or reported at least 13 deaths in the last 48 to 72 hours alone. The state government says only 4 have died. It's not about the number. It's about the criminal negligence that led to deaths that are, first of all, being covered up. And secondly, over 1,000 people have been hospitalized in Indore in different hospitals. All the beds are being occupied. Now, these are details we're picking up from the ground in Indore. And over 5,000 people are sick, over 1,500 in hospitals. And when we spoke to the people on the ground, now most of those people who are in hospitals, who are sick, who've been drinking this dirty, poisonous water, they just have one thing to say, that they've been warning the politicians in Indore for almost 2 months now, and they say that it was because of a tender that the work was never carried out. The result, people have died, and not a single head is rolled in Indore, Madhya Pradesh. We went to the ground. We are in Indore. 10 reporters of the Republic Media Network are investigating. We're getting in some pictures as we investigate the story further. Let's get you some breaking news first up on the live report. Some pictures that came in earlier of the politicians who are responsible. The councillor responsible for the deaths was seen at an event just 24 hours ago. And not just seen, he was seen dining at an event. In fact, pictures show him in a very calm, composed manner, laughing. That's him. Exclusive pictures on Republic. That is what you call Farshad, the councillor. That's him on the screen there. He was seen 24 to 48 hours ago while people were in hospitals at an event. Very calm, on a swing, smiling with people. There are pictures as well of the dining that happened, the dining that took place. In fact, they held an event where Bablu Sharma is also a politician in charge of the waterworks. He had organized a food event, a mass food event. As 13 people died, including children, many of them were children. Many of them are children who are hospitalized. The politician responsible was seen dining at events. And let's get you the pictures and the report from inside the hospitals as we speak to each one of them to hear their story of why they ended up in a hospital. Take a listen. शहर इंदौर की इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो वाकई शर्मसार करने वाली, क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर में आखिरकार गंदे पानी से, दूषित पानी से तकरीबन 1100 से भी अधिक लोग जो है वो बीमार हो गए।
पिछले 24 घंटों से इन्हें ऑब्जर्व रखा गया है। तमाम इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के जितने नजदीकी हॉस्पिटल वहां पर पेशेंट भर्ती है, लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने से ये गंदा पानी पी रहे थे। कई बार शिकायतें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह का कोई अहम कदम उन जिम्मेदारों ने नहीं उठाया। इस वक्त मैं भी एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, सभी मरीज जो है यहाँ पर उचित उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि निःशुल्क मरीजों का उपचार कराया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस दूषित पानी से अब तक जो पुष्टि हुई वो 4 मौतों को हुई है, लेकिन ये बताया कि ये 4 से अधिक मौतें हो सकती है। 7 मौतें अब तक बताई जा रही कि दूषित पानी से हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी 4 लोगों की गई है। वहीं दूसरा कि ये तकरीबन 2 करोड़ रुपए का टेंडर पिछले 6 महीने पहले यहाँ पर जो है टेंडर किया गया था कि सारी जो पाइपलाइन बदली जाएगी, लेकिन पिछले 6 महीनों से इस टेंडर में जो है पारित होने के बाद में, प्रस्ताव होने के बाद भी इस टेंडर पे किसी तरह का काम नहीं किया गया। बड़ी लापरवाही इसलिए भी क्योंकि जहां से ये पानी पूरा टंकी से होते हुए जिस पाइप से गुजरता हुआ सभी भागीरथपुरा के लोगों को, रहवासियों तक पहुंचता है, वहां पर ड्रेनेज की लाइन में जो है वो लीकेज था, वहां पर शौचालय बना हुआ था और उसी लीकेज में ये गंदगी का पानी घुसा और उसके बाद में लोग काफी 1 महीने से इस गंदगी दूषित पानी को पी रहे थे। कुछ लोग मरीज भी हमारे यहाँ पर साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है, उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांट देंगे। डेट को लेकर क्या है, क्योंकि बहुत देखिए ऐसा है, हाँ ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी है वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। हम 13 लोगों की मौत की बात जो सामने आ रही है। नहीं 13 नहीं है, 13 नहीं। मतलब बीमार कितने टोटल हो रहा है? मैंने बताया ना आपको कि 200 लोग भर्ती हैं। सर एक 198 उर्मिला यादव के घर भी गए थे, उनके परिवार में अभी एक और महिला को भेजा है अस्पताल। हाँ अभी हाल ही भेजा, मेरी डॉक्टर भंडारी साहब से बात हुई है, रोशनी यादव और उनके हस्बैंड दोनों को भेजा है, दोनों को वहाँ हॉस्पिटलाइज कर अभी कुल कितने लोगों को चेक बांटा है? अभी छोड़ो यार चेक। And the truth is not a single person has been sacked. Nobody has been made to face the punishment. And these are pictures. And those are politicians who, until yesterday, were having a great time laughing all the way as people died. And I want to go across, as we have another report. Can we play that report and then we'll go across to Satya Vijay? We have a report from Indore. Let's play that out first up. करने वाली, क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर में आखिरकार गंदे पानी से, दूषित पानी से तकरीबन 1100 से भी अधिक लोग जो है वो बीमार हो गए। पिछले 24 घंटों से इन्हें ऑब्जर्व रखा गया है। तमाम इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के जितने नजदीकी हॉस्पिटल वहां पर पेशेंट भर्ती है, लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने से ये गंदा पानी पी रहे थे। कई बार शिकायतें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह का कोई अहम कदम उन जिम्मेदारों ने नहीं उठाया। इस वक्त मैं भी एक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, सभी मरीज जो है यहाँ पर उचित उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि निःशुल्क मरीजों का उपचार कराया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस दूषित पानी से अब तक जो पुष्टि हुई वो 4 मौतों को हुई है, लेकिन ये बताया कि ये 4 से अधिक मौतें हो सकती है। 7 मौतें अब तक बताई जा रही कि दूषित पानी से हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी 4 लोगों की गई है। वहीं दूसरा कि ये तकरीबन 2 करोड़ रुपए का टेंडर पिछले 6 महीने पहले यहाँ पर जो है टेंडर किया गया था कि सारी जो पाइपलाइन बदली जाएगी, लेकिन पिछले 6 महीनों से इस टेंडर में जो है पारित होने के बाद में, प्रस्ताव होने के बाद भी इस टेंडर पे किसी तरह का काम नहीं किया गया। बड़ी लापरवाही इसलिए भी क्योंकि जहां से ये पानी पूरा टंकी से होते हुए जिस पाइप से गुजरता हुआ सभी भागीरथपुरा के लोगों को, रहवासियों तक पहुंचता है, वहां पर ड्रेनेज की लाइन में जो है वो लीकेज था, वहां पर शौचालय बना हुआ था और उसी लीकेज में ये गंदगी का पानी घुसा और उसके बाद में लोग काफी 1 महीने से इस गंदगी
दूषित पानी को पी रहे थे। कुछ लोग मरीज भी हमारे यहाँ पर साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चाची, क्या हुआ था, ये कैसे? मतलब जैसे पाइपलाइन जगह जगह ये फूटी करी तो बोले थोड़ा पानी, बोले थोड़ी पाइपलाइन फूटी दिक्कत आएगी, हो जाएगा पानी। फिर 2-3 दिन में पता नहीं एकदम ऐसा पानी आया है कि बस बीमारी हो गया। 3:30 बजे से मेरे को जो रात के 10 लगने लगे, मैं सुबह कल 3:30 बजे यहाँ पर भर्ती करा। आपके घर से कितने लोग बीमार हैं? 2 लोग बीमार हैं आपके घर से? हाँ। अभी क्या आपको ठीक लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। इलाज तो सब अच्छा है। इलाज किया जा रहा है। इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ और भी मरीज यहाँ पर भर्ती है। आप यहाँ से किसे लाए? फादर के आज मॉर्निंग में उनको एडमिट किया हुआ है। हाँ। बाकी उनको डॉक्टर से जैसे ट्रीटमेंट करवाया था, डॉक्टर बोले कि वहाँ पानी का इन्फेक्शन हुआ है। पानी से इन्फेक्शन? बिल्कुल। तो उपचार हो रहा है यहाँ पे? उपचार हो रहा है, पर हम पेट करके दे रहे हैं। अच्छा, पेट करके। हालांकि तहसीलदार और तमाम लोग हैं और भी मरीज यहाँ पे मौजूद। दादा, आप कहाँ से लाए हैं? आप कहाँ से हो? भागीरथपुरा से। भागीरथपुरा से। क्या हुआ था ये दस्त हुए थे साहब। कब से पी रहे थे गंदा पानी? अब क्या मालूम, पी तो रहे थे 10 दिन हो गए, 15 दिन, लेकिन क्या मालूम नहीं पड़ा। क्या किया जाए? कितने लोग भर्ती आपके हैं? ये मैं तो अकेला ही हूँ साहब। भागीरथपुरा के तो बहुत हैं। कितने लोग होंगे? बहुत होंगे, कम से कम नहीं तो 1000-1500 होंगे। 1000-1500। हाँ। आप ये देख सकते हैं मरीज जो है भर्ती है। आप भी वहीं से ही हैं? भागीरथपुरा से। अच्छा। हाँ। ये कब पता चला कि दूषित पानी है? ये 8-10 दिन से मालूम पड़ा है। हाँ। ये तो शिकायत की थी आपने? शिकायत की थी हमने, फिर बोले कि ठीक हो जाएगा। वो शिकायत भी हुई थी, लेकिन शिकायत का निराकरण नहीं किया गया। यहाँ पर एक एप्लीकेशन होती है 311, नगर निगम ने निःशुल्क जो एप्लीकेशन है इस पर शिकायत एप्लीकेशन के नाम पर ये बनाई गई है, लेकिन शिकायत होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब तक जो मरीजों की संख्या है वो 1100 से अधिक बढ़ चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी, अमला, यहाँ तक कि जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है वो भी यहाँ पर मरीजों का हाल जानने आए थे। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भी इन मरीजों से जो है यहाँ पर मुलाकात करेंगे, इनका हालचाल जानेंगे और पूरी स्थिति को समझेंगे। लेकिन अब तक 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर के, और एक जो कमेटी है वो गठित की गई है जांच एजेंसी की। आखिरकार ये टेंडर में लापरवाही क्यों की गई और ये दूषित पानी आखिरकार इतने दिन से था, जब शिकायतें मिल रही थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? And we've been reporting from the ground that it was about a tender. Can you believe it? 2 months back, the residents of Indore went to the politician concerned, the waterworks department in charge, concerned in that area, and they warned him that we're getting drinking water which is extremely dirty, not fit for drinking. And this was because right next to a public toilet, there was leakage and drinking water pipeline had burst and was mixing with the sewage water. Nobody did anything for 2 months, ladies and gentlemen, because a tender was not passed. That is what we are hearing. A tender was not passed. We have details of what really happened. Let me put that on the screen right now. Over 1,500 people are sick as we speak and hospitalized in different places across Indore, different hospitals across Indore, due to contaminated water. This dirty water was being supplied for almost 2 months in what is now called the cleanest city. It's been termed the cleanest city. And inside story is that politicians kept waiting on a 2 crore rupee tender for repairs. They were waiting on a tender, or they were waiting for God knows what. They just did not move for almost 2 months, and drainage water leaked into the drinking water pipeline. And after all of this, nobody has been sacked, no action taken. Let me go across to Satya Vijay as we get you more details. Satya Vijay, first of all, number pe, I mean, they're not giving us the real number. On the ground, we are hearing that, 13 people have died in different hospitals. Sarkar bol rahi hai only 4 people. State government says only 4, but in different hospitals, 13 have died, we are hearing. The minister, we just heard him say that 100 are hospitalized, but over 1,000 are reportedly hospitalized in different hospitals across Indore. Right? Not a single person has been sacked, Satya Vijay. Yeah, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार जो है मौत के आंकड़े को छिपा रही है। निरंजन जी, बहुत ही गंभीर बात है कि जल
जीवन देता है, लेकिन यहाँ पर जल ने जीवन छीन लिया। संक्रमित पानी महीनों से भागीरथपुरा के लोगों को दिया जा रहा था और महीनों से इसकी शिकायत की जा रही थी। ना वहां के पार्षद ने सुनवाई की, ना नगर निगम के कमिश्नर ने सुनवाई की, ना वहां पर स्थानीय जो विधायक है कैलाश विजयवर्गीय, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने सुनवाई की। उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र ये आता है। किसी भी जिम्मेदार ने लोगों की सुनवाई नहीं की। लगातार शिकायतों के बाद भी अनसुना किया गया। कह सकते हैं कि भागीरथपुरा जो है वो मिडिल क्लास फैमिली वहां पर उस बस्ती में रहती है, वहां पर कोई वीवीआईपी शायद नहीं रहता, इसीलिए इन आम लोगों की सुनवाई नहीं हुई और एक के बाद एक मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। अभी भी सरकार, मैं कहूंगा, झूठ बोल रही है, क्योंकि कल सीएम जब वहां पहुंचे थे तो सिर्फ उन्होंने 4 मौत का दावा किया, जबकि अभी कुछ देर पहले आप ही के शो में जो कैलाश विजयवर्गीय की बाइट प्ले हुई है उसमें अब वो कह रहे हैं कि 9 मौत। लेकिन स्थानीय लोगों की बात की जाए, जो वहां के पीड़ित लोग हैं, उनके मुताबिक 13 मौत हो चुकी है। और स्थानीय लोगों के साथ साथ इसमें मौत में सबसे गंभीर बात यह कि एक 6 महीने का बच्चा, उसकी मां उसे दूध में पानी मिलाकर पिलाती थी और उस दूध में पानी की वजह से दूध भी संक्रमित हो गया और 6 महीने की बच्चे की मौत हो गई। लेकिन सरकार चूंकि पूरी तरह से सिस्टम में नाकामी है, इंदौर क्लीन सिटी का इसको दर्जा प्राप्त है, लेकिन इस क्लीन सिटी में सीवेज का पानी पिलाया जा रहा था, इसीलिए लोगों में गुस्सा है। कांग्रेस तो सवाल उठा ही रही है, स्थानीय लोग भी काफी नाराज हैं और यह पहली बार नहीं है। हर बार जब मौतें होने लगती हैं उसके बाद यह सरकार जागती है। निरंजन जी, आप देखिए, छिंदवाड़ा में भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, वहां पे जहरीली सिरप से 24 लोग मर गए और उसमें भी जब मौत का आंकड़ा बढ़ा उसके बाद सरकार जागी और अचानक औचक निरीक्षण किए गए, तमाम चीजें की गई। यहां पर भी यही हो रहा है। पूरी तरह से इंदौर नगर निगम का फेलियर है, इंदौर के मेयर का फेलियर है, इंदौर के जितने नेता हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, तुलसी सिलावट हो, जो मंत्री भी हैं, इनका फेलियर है, क्योंकि आम आदमी की सुनवाई नहीं हुई और इसीलिए सीवेज का पानी पीने को लोग मजबूर थे महीनों से। और ताजुब की बात देखिए, एक और तस्वीर हमारे पास सामने आई है जिसमें कि जो स्थानीय पार्षद है, जो कमल बाघेला स्थानीय पार्षद है इस क्षेत्र का, उसको इन लोगों की शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 3 दिन पहले का उसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मैं उस विजुअल को प्ले कर रहा हूं। सत्य विजय, मैं उस विजुअल को प्ले कर रहा हूं। सत्य विजय is referring to producers the visuals we just played, where the politician, the Farshad or the councillor or the politician is seen enjoying. And there are still pictures of him at an event dining, organizing a lunch for people. It was business as usual for politicians as over 1,500 people are hospitalized. This is the state that Satya Vijay is talking about. ये इनका रोल क्या है? ये कौन से पार्टी से है? Satya Vijay, which party does he belong to? And what has been his response? या देखिए, ये जो कमल बाघेला हैं, जिनके क्षेत्र में जिस इलाके से ये चुनकर आते हैं, ये पार्षद हैं और भाजपा से ये पार्षद है, कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के क्षेत्र में भागीरथपुरा भी आता है। जनता ने इनको चुनकर भेजा था कि साफ पानी देंगे, लेकिन इन्होंने जहरीला पानी दिया। इन्होंने सुनवाई नहीं की। 2 से 3 दिन पहले का ये वीडियो है जिसमें कि कमल बाघेला जो हैं, जो कि इसी इलाके से पार्षद हैं, महीनों से लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी, वो झूला झूल रहे। आप समझ सकते हैं कि कितने लापरवाह हैं ये जिम्मेदार और नेता, जिनको जनता ने चुन के भेजा। इनको झूला झूलने का समय है, लेकिन लोगों की सुनवाई, लोगों की शिकायतों पर, जो कि दूषित पानी पी रहे हैं, उसकी सुनवाई से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तस्वीर है, इसमें जो जल कार्य विभाग के अधिकारी हैं, बबलू शर्मा, इन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, उसमें वो लोगों को खाना परोस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आप समझिए, जल कार्य प्रभारी हैं ये बबलू शर्मा, इनका काम है लोगों को साफ पानी पहुंचाने का, लेकिन इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इनकी तनख्वाह आती है और इनको इस तरह के आयोजन करने हैं। इंदौर क्लीन सिटी में बार बार कह रहा हूं, स्वच्छता का तमगा मिला हुआ है, लेकिन वहां के सिस्टम को स्वच्छ करना होगा। पूरा सिस्टम कह सकते हैं कि वहां पर कोलैप्स हो चुका है। इंदौर की तस्वीर है कुछ दिन पहले की, जब एमबाई हॉस्पिटल में चूहों ने मासूमों को कुतरा था और 2 मासूमों की मौत हो गई थी। अभी सतना का, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, सतना का आप देखिए, HIV संक्रमित ब्लड बच्चों को चढ़ा दिया गया। तीसरी तरफ छिंदवाड़ा का हमने जिक्र किया कि 24 बच्चे सिर्फ जहरीली सिरप से मर जाते हैं। चौथी तस्वीर ये अभी इंदौर की, जल जीवन, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन यहां पर जल ने जीवन छीन लिया। नर्मदा पाइपलाइन, जिससे कि पानी, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार सभी को है, लेकिन इंदौर की जनता को शायद नहीं है। ये साबित होता है इस घटना से। और अभी भी सिर्फ तर्क दिए जा रहे हैं कि सर्वे कराया, मुआवजा दे रहे हैं, सैंपलिंग कर लिए, पहले क्यों नहीं जागे, ये सवाल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क बार बार कर रहा है, जब लोग लगातार शिकायतें कर रहे थे। अगर पूरे आंकड़े की बात करें तो 1000 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं
और अभी भी 160 लोग एडमिट हैं, 26 लोग आईसीयू में हैं, मतलब आईसीयू में है, क्रिटिकल स्थिति में है उनकी। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ बुरा हो, लेकिन उनमें से कईयों की जान जा सकती है अगर उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी भी नहीं मिला तो। इसके बाद भी प्रशासन या सरकार कल से थोड़ी सचेत हुई है। जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे आम आदमी के साथ यहाँ की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार खिलवाड़ कर रही है। Okay, एक मिनट. We spoke to some of the family members. In fact, this lady we spoke to in Indore, among the victims is a 6-month-old infant who died after consuming the contaminated water, the poisonous water. We spoke to them in Indore. कितनी बार मैं क्या शिकायत हुई? बच्चा नहीं रहा सर। क्या हुआ था बच्चे को? उल्टी दस्त हुए थे सर। कब से हो रहा था ये उल्टी दस्त? शांत होने की 1-2 दिन पहले से ही हो रहा था सर। अच्छा, आप मानती है कि ये दूषित पानी के कारण ही हुआ है? यस। अच्छा, तो बच्चे को अस्पताल में भर्ती भी कराया था? सर वही चीज तो बोले कि मतलब बच्चे की डेथ हो रही है, भर्ती कराओ। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये भर्ती वाली बात कुछ नहीं होती है सर। बच्चा बीमार था, डॉक्टर के पास लेके गए, कोई भी गोली दवाई देता है 2-3 दिन के लिए देता है, 2 दिन के लिए देता है। मैंने दिखाया, 1-2 दिन रहा हाँ, है ना। हाँ। फिर बच्चा नर्वस था, हम CHL अपोलो लेके गए, मेरी कंडीशन नहीं थी ले जाने लायक बच्चा, क्योंकि मैं घबरा चुकी थी। इसके दादा दादी, इसके पापा लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया कि बच्चा नहीं है सर। बालों को दस्त लगे हुए थे, बुखार आ रहा था, उसको डॉक्टर को हमने दिखाया था। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी, हम घर ले आए थे उसको। तो ये 26 तारीख को दिखाया था हमने। 2 दिन ठीक रहा बच्चा, मतलब ठीक है। अब दस्त लगे तो नर्वस तो होता ही है बच्चा थोड़ा, ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज़ बुखार आया, उल्टी हुई, उसको घर भी शांत हो गया था। कितनी तारीख को? 29 तारीख को। नॉर्मली जो बच्चों को दस्त डायरिया होता है, जो भी मतलब लगते हैं, अपन तो यही नॉर्मली सोचते हैं। हॉस्पिटल नहीं, अपना क्लिनिक है यहाँ पर, डॉक्टर सिरोंज करके है, 3 पुलिया पे है, उनको ही दिखाया था हमने। उन्होंने मेडिसिन, बच्चे का चेकअप करा था और मेडिसिन लिख के दे दी थी। पीने के पानी के साथ जो ध्यान में आया है कि इसके कारण से उल्टी दस्त के बड़ी संख्या में बीमार और अलग अलग हॉस्पिटल में मिले हैं। तुरंत प्रभाव से लगभग 2-3 दिन के अंदर 40,000 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 2456 संदेहास्पद व्यक्ति के लक्षण मिले थे और 212 भर्ती किए गए। इसमें 50 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए, 162 मरीज अभी भर्ती है। 5-6 हॉस्पिटल में आज हम सब मिलकर के हर एक मरीज से मिलकर के आए और कमोबेश सबकी स्थिति करीब स्टेबल है और हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था ठीक तरह से की जा रही है। हमने कहा कि सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और ख़ास करके सभी क्षेत्रों के अंदर जहां भी पानी से संबंधित शिकायत है उसको और अच्छे से जांच कर लें और भविष्य में ऐसी नौबत ना आए इसका प्रबंधन भी करें। Well, that was the Chief Minister yesterday, tried to underplay the facts. Today, another minister comes out and says 9 people have died. The real number is much bigger, and we at Republic are tracking this story. Continues to be one of our top stories. Taking a break. Back with the headlines at 12:30. Thanks for watching. The Indore investigation, even water not safe. For 2 months, people of Indore kept begging for help from politicians, didn't get any.